Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy plus subscription. So Unacademy plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. Hi friends, so before to start with the actual lecture, let me tell you about the Unacademy's offer for both Iconic and Plus subscriber. That is, this offer is valid till 16th of July 2021. You are having the exciting mega offers for CPC classes from class 6 to class 12. So offers are likewise. If you are having the subscription of 12, 15 and 18 months, आपको अगर 12, 15 और 18 महीनों का subscription रहेगा तो you are having 2 months free. Then if you are having the subscription on 24, 36 and 48 months, you are going to have the free for the 4 month subscription. If you are having 60, 72 and 84 month subscription, then you are going to have the free CBSE subscription for 6 months. So likewise, the same case is applicable for the Creative Corner subscription. You are having free Creative Corner subscription for the 2 months, 4 months and 6 months. As I have explained the 12, 15, 18 months as well as 24, 36, 48 months and lastly 60, 72 and 84 months respectively. So there is this बात की है, you are having flat 10% discount on purchasing plus subscription for all duration. So जल्दी कीजिए और अपना आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो करा लीजिए. Then next I want to tell you about the CBSE's latest guidelines for the live Unacademy. So new CBSE batches are going to start from the 19th of the July for class 9 and class 10 for CBSE classes. So batches are dedicated to term 1. And yes, this term 1 examination is approaching in 3 months only. So जल्दी से जल्दी आप लोग अपना subscription ले लीजिए. So batches are dedicated to term 1 and completely aligned with the new CBSE guidelines. And obviously all the subjects are going to be included for class 9th and class 10th. And yes, obviously the most beneficial is you are having both, that is Hindi and English मोड ऑफ डिलीवरी, दैट इज मोड ऑफ कंडक्शन. यस, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है क्लास 9 और क्लास 10 को पढ़ाया जाएगा. So let me tell you about the mega combat of the Unacademy, that is Unacademy combat. You can win scholarship worth rupees 2 crore. जी हाँ, बिल्कुल सही. पिछले मंथ में हमने जो कॉम्बैट लिया था वो था अप टू द वर्थ स्कॉलरशिप ऑफ 1 crore, which was a huge success. बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था. So you can participate also. You are going to have 30 questions in the 45 minutes, and the test will be in Hindi as well as English language. And you are going to have free live test on Android. आपका कोई भी Android phone जो है आप यूज कर सकते हो लाइव टेस्ट के लिए, and it will be totally free. The exam will be on the 18th July and for the classes 9th and 10th at 11 AM. So जल्दी करिए और अपना enrollment कर लीजिए. And let me tell you about the 10% off on Unacademy plus an iconic subscription. You can use my code, that is TD Live. So जल्दी से आपका plus और iconic subscription जो है वो करा लीजिए. So today's status we are going to start with the class 10th information technology code 402 under NSQF. So in today's lecture we are going to see next part of database management systems, that is table relations. How relationships are going to be established between the tables here. So today's contents are we are going to see table relations, one to many as well as many to many. And last point which we are going to see about the relations, that is referential integrity. So let's get started with it. So students, let me tell you about the in last lecture what we have seen. हम लोगों ने last lecture में क्या किया, how to create a database, how to create table, how to modify table, how to insert the values into the table. ये सारी चीजें हम लोगों ने last lecture में देखी है. उसके साथ हम लोगों ने क्या किया था, टेबल में फील्ड्स जो है फील्ड्स के प्रॉपर्टीज कैसे सेट करनी है, देन वैलिडेशंस कैसे उसको अप्लाई करना रहे, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि डिफरेंट डेटा टाइप्स जो होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं. How to use the primary key also we have seen so many properties of the fields. Okay,
सो आज हम लोग क्या करेंगे, वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ओपन माई MS Access हियर. ठीक है, मेरा जो डेटाबेस था पिछला, वही मैं उसको ओपन करती हूँ अभी यहाँ पर. ठीक है, ओपन हो गया. उससे पहले हम लोग रिलेशंस के बारे में समझ के लेते हैं. द रिलेशंस आर गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टेबल्स, इट इज वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी. ठीक है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए, वन टू वन रिलेशनशिप मतलब क्या होता है बिटवीन टू टेबल्स. एक फील्ड का, ठीक है, एक टेबल के फील्ड का दूसरे टेबल के फील्ड के साथ रिलेशन, दैट इज नथिंग बट दी वन टू वन रिलेशनशिप. देन वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के रोल नंबर का जो है ये गाइड आईडी के साथ रिलेशन है, दैट इज नथिंग बट वन टू वन रिलेशनशिप. एक फील्ड का दूसरे टेबल के एक फील्ड के साथ रिलेशन जो होगा उसको कहेंगे हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप. यस, अभी स्टूडेंट कंसिडर कर लीजिए यहाँ पर. अभी हम लोग क्या करते हैं, ये एग्जांपल में एक स्टूडेंट को एक ही गाइड जो है हम असाइन करते हैं. ठीक है, अभी सपोज यहाँ पर हम लोग इसका गाइड करते हैं J6. देखिए, इसको कहेंगे हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप. जैसे कि अभी देखिए, एक स्टूडेंट को यहाँ पर एक ही गाइड अप्लाई किया जाएगा, दैट इज एक स्टूडेंट इज गोइंग टू हैव ओनली वन गाइड. यहाँ पर एक स्टूडेंट को एक ही गाइड जो है हम लोग असाइन करते हैं, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी अप्लाइड हियर. जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए, गाइड आईडी जो है यहाँ पर 6 है, राइट. यानी कि सीमा को गाइड 6 जो है वो असाइन किया गया है, राम को गाइड 2 जो है वो असाइन किया गया है, जॉन को जो है गाइड 1 जो है वो असाइन किया गया है, एंड नेक्स्ट दूसरा वाला जॉन है. यस, यहाँ पर जॉन को क्या हो गया है, G3 असाइन किया गया है. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है, सो फॉर नाउ आई विल डिलीट दिस. क्योंकि एंटायर रो करूंगी मैं तो G3 जो है वो भी डिलीट हो जाएगा. कोई बात नहीं, हम फिर से एंटर कर लेंगे. और यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देते हैं. यहाँ पर कौन सा गाइड था, आई थिंक G3. ओके, G3 का नाम सुबह हम लोग लिखते हैं XYZ. सॉरी, मैं फॉर्मेट में एंटर कर दिया गलती से, कर दिया. To better understand, let us have a look at it. G1, G2, G3, G4, G5. ठीक है, G1, G2, G6. G6 की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर. अभी हम लोग क्या करते हैं, G1 तक ही रखते हैं. एंड आई विल डिलीट दिस. ओके, ठीक है. वन टू वन रिलेशनशिप के लिए अभी देखिए, सीमा को एक ही गाइड अप्लाई किया हुआ है हमने, और एक गाइड जो है सिर्फ एक ही स्टूडेंट को अप्लाई किया गया है. That is, we can say that one record in one table is related to the another record of one table. और वो रिकॉर्ड जो है वन टू वन रिलेशनशिप इसको कहेंगे. अभी G2 जो है सिर्फ एक ही है और एक ही स्टूडेंट को अप्लाई किया गया है, वैसे ही यहाँ पर PQ और गाइड को सिर्फ एक ही स्टूडेंट असाइन किया गया है. वैसे ही G3 यहाँ पर देखिए, G3 जो है यहाँ पर XYZ है, एंड इसको सिर्फ एक ही स्टूडेंट असाइन किया गया है और एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही गाइड दिया गया है. Same case for the Geeta, who is having guide G5, and G5 is going to have only one student under him or her. And lastly, John. ये वाला John जो है अलग John है. ठीक है, don't get confused. You can see the primary key here. इसका रोल नंबर जो है वो अलग है, हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था. तो फिर इस John को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक ही G4 यानी कि एक ही गाइड MNO जो है वो असाइन किया गया है. दैट इज नथिंग बट योर वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द रिकॉर्ड्स. यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है, एक ही रिकॉर्ड को दूसरे टेबल का एक ही रिकॉर्ड जो है वो डायरेक्टली असाइन किया जाता है. दैट इज नथिंग बट वन टू वन रिलेशनशिप्स. देन नेक्स्ट वन इज वन टू मेनी रिलेशनशिप इन टेबल. ये सारे जो है टेबल में है, so don't get confused के डेटाबेस के हैं. ये भी टेबल का है और ये वाला जो है वो भी
relationship in tables. Okay. So this is all about the one-to-one relationships in the tables. So the next one is the one-to-many relationships in table. So here as per the name one-to-many relationship मतलब क्या होगा देखिए अभी यहाँ पर likewise suppose you can consider that वन टू मेनी रिलेशनशिप में एक गाइड जो है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए असाइन किया गया होगा. सपोज अभी जीवन गाइड जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, दो जगह पर असाइन किया गया होगा. दैट इज नथिंग बट दी वन टू मेनी रिलेशनशिप. अभी देखिए वन टू मेनी रिलेशनशिप में ये जनरली यहाँ क्या होता है, दैट इज वन रिलेशनशिप, यानी कि एक गाइड मल्टीपल स्टूडेंट्स को यहाँ पर होगा. तो यहाँ पर पेरेंट टेबल जो रहेगा वो गाइड इंफॉर्मेशन रहेगा और चाइल्ड टेबल जो रहेगा वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि वन एंटिटी और वी कैन से दैट वन रिकॉर्ड ऑफ दिस टेबल गाइड टेबल इज गोइंग टू बी असाइन्ड टू दी मेनी records of the student information table. That's why we are calling one to many relationship in which सिर्फ एक ही गाइड जो होगा वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए असाइंड रहेगा. That is your one to many relationships in table. And lastly many to many relationships in tables. As per the name many to many relationship मतलब क्या, एक टेबल की जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है दूसरे टेबल्स के मोर देन वन रिकॉर्ड से रिलेटेड रहेगा. दैट इज नथिंग बट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स इन टेबल्स. सो अभी फॉर एग्जांपल लेट अस सी हियर. हियर अभी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम लोग, एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा गाइड्स रहेंगे, ये हम एग्जांपल लेते हैं, और एक गाइड जो है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए असाइन रहेगा. दैट इज नथिंग बट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स. लाइकवाइज अभी सपोज कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, अभी इसको सपोज जॉन को एक और प्रोजेक्ट हम लोग असाइन कर देते हैं. ठीक है, ये वाला जो है इसको और एक प्रोजेक्ट हम लोग असाइन करके देंगे. ठीक है, अभी इसको प्रोजेक्ट नंबर 2 4 5 6 यस. अभी कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट दे, कुछ डिफरेंट दे देंगे. वाटर हार्वेस्टिंग इसको दे दिया. ठीक है, अभी जॉन को G1 भी असाइन है और नेक्स्ट आई विल असाइन G3. ओके, अभी यहाँ पर देखिए इफ यू कंपेयर हियर, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर सीमा को जो है वो G1 ABC गाइड असाइन है और नेक्स्ट वन इज जॉन को भी G1 दैट इज ABC गाइड असाइन है. वैसे ही जॉन को देखिए यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है और उसको दो गाइड असाइन है दो डिफरेंट प्रोजेक्ट के, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग एंड गार्डनिंग G3 एंड G1 दैट इज ABC एंड XYZ. ये दो गाइड्स उसको असाइन है. दिस इज नथिंग बट व्हाट, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स. आई रिपीट कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स में क्या होता है, multiple records of one table are related to the multiple records of other table. So in this way you are going to use this many to many relationships as per our need. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हमने देखा G1 गाइड जो है वो सीमा और जॉन दोनों को भी असाइन किया गया है. एंड नेक्स्ट वन इज जॉन को G1 एंड G3 दैट इज ABC एंड XYZ. ये दोनों के दोनों गाइड्स जो है एक स्टूडेंट्स को अप्लाई किए गए हैं और वी कैन से दैट असाइन किए गए हैं. सो दिस इज नथिंग बट दी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स इन डेटाबेसेस. सो अभी देखिए फिलहाल के लिए हम लोग अपना ये वाला एग्जांपल जो है वो ओपन करके लेते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग एक और टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल. ओके, सो इट इज बेटर दैट आई शुड ओपन इट इन द डिजाइन. टेबल का नाम रहेगा TB गाइड इन्फो. अभी इसके आईडीज कौन से हैं, गाइड आईडी एंड गाइड नेम. दो ही आईडीज हैं अपने पास, गाइड आईडी एंड नेक्स्ट वन इज द गाइड. ओके, शॉर्ट टेक्स्ट. ओके, दैट इज सफिशिएंट. अभी गाइड आईडी जो है, ठीक है, एटो नंबर रहने देते हैं फिलहाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं
guide id related to students, roll number लिख लेते हैं, and here name of the guide. ठीक है, अभी हम लोगों ने सेव कर लिया. इन्फो आर, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक, इंफॉर्मेशन है या इन्फो आर है, पोज कर देती हूँ और मैं इसको रिनेम कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. रिनेम इसलिए करना है ताकि अच्छा और सोफिस्टिकेटेड नेम दिखे यहाँ पर. ठीक है, गाइड नेम हमारा ABC, ऑटो इंक्रीमेंट है PQRDEFGHIJKL, लास्टली XYZ. ठीक है, 2 फील्ड्स हम लोगों ने ले लिए, इसको सेव कर दिया. सो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड टेबल गाइड इंफॉर्मेशन एंड वी आर हैविंग टेबल स्टूडेंट इन्फो. अभी हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक और फील्ड जो है वो इंसर्ट करके देते हैं. ओके, इंसर्ट फील्ड. ओके, फील्ड नेम यहाँ पर होगा गाइड आईडी. ठीक है, अभी रैंडमली हम लोग गाइड आईडी ले लेते हैं 1 2 3 4, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लेते हैं 5 2 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेते हैं 2 और यहाँ पर लेते हैं हम लोग 4. ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको सेव करके ले लिया. ये बाकी के फील्ड्स अभी फिलहाल हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट नाउ. अभी हमको रिलेशन जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है. ठीक है, देख के तो समझ में आता है कि रिलेशन है, बट अगर समझो मैंने यहाँ पर हर एक का जो फॉर्मेटिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है, राइट. अभी यहाँ पर सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, गाइड आईडी को यहाँ पर इसकी जगह पर सपोज किसी ने सिर्फ गाइड लिया, सो दैट में क्रिएट कंफ्यूजन. सो इसके लिए हमारे पास क्या है, डेटाबेस में, हमारे MS एक्सेस में वी कैन डायरेक्टली क्रिएट द डेटाबेस relationships. Okay, you can see here create, then you can see here create options are there, external data. ये हम इसके बाद देखेंगे क्या होता है external data. Then we are going to use the database tools, that is relationships. ठीक है, ये भी हम लोगों ने बहुत से पहले देख चुके हैं, that is fields. इसका डेटा टाइप जो है वो क्या होता है, so. ठीक है, कहाँ पर है अपना डेटाबेस टूल्स. अभी यहाँ पर 2 टेबल्स हैं, तो इसमें हमें को क्या करना है, रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करना है. सो आई हैव क्लिक्ड ऑन रिलेशन, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑल रिलेशंस. पहले यहाँ पर कुछ भी रिलेशनशिप्स मौजूद नहीं है, तो अभी हमको क्या करना है, देखिए आई एम गोइंग टू क्रिएट रिलेशनशिप. देखिए कैसे करना है, फिर से एक बार दिखा देती हूँ. यू हैव टू गो इनटू द डेटाबेस टूल्स. देखिए ये मेरा जो वर्जन है वो MS Access 2019 है. इफ यू आर हैविंग डिफरेंट वर्जन, स्लाइड चेंज मे बी देयर. ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आपका इससे भी होगा तो उसमें स्लाइड चेंज होगा, या फिर पुराना वर्जन होगा तो उसमें स्लाइड चेंज होगा. जैसे आपके ऑप्शंस जो है थोड़े बहुत टैब्स जो है चेंज रहेंगे, बट ऑपरेशंस की मेथड जो है, मेथोडोलॉजी जो है वो सेम परफॉर्म करनी है यहाँ पर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन द रिलेशनशिप्स, एड टेबल्स. ठीक है, पहला टेबल हमको क्या करना है, गाइड इंफॉर्मेशन एडेड, एंड नेक्स्ट टेबल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्वेरीज एंड टेबल्स वो जो है हम लोग बाद में देखेंगे. एंड अभी हमको क्या करनी है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करनी है, राइट. सो आई विल क्रिएट, यहाँ पर यू कैन सी हियर हम लोग अभी एडिट रिलेशनशिप करेंगे. ठीक है, सो अभी देखिए क्रिएट न्यू वन. सो लेफ्ट टेबल नेम कौन सा है हमारा, टेबल गाइड इन्फो, एंड राइट टेबल नेम कौन सा है हमारा, टेबल स्टूडेंट इन्फो. ठीक है, अभी रिलेशनशिप किस में इस्टेब्लिश करनी है, इफ यू गो फॉर दिस एग्जांपल, हम लोग गाइड आईडी के लिए लेंगे एंड स्टूडेंट नेम. ठीक है, गाइड आईडी टू स्टूडेंट नेम करेंगे, या फिर रोल नंबर भी सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई भी ले लेते हैं. फिलहाल हम 1 to 1 ही देख रहे हैं. गाइड आईडी इज देयर एंड राइट कॉलम roll number is there. Okay, that is what 1 to 1 relationship. And join type, okay, 1.
It's okay. Only include rows where the joint fields are both tables are equal. Includes all records from table info. ये अलग अलग ऑप्शंस जो है, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल गाइड इन्फो एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द वेयर जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल 1 to 1. यहाँ पर हो गया 1 to 1. यहाँ पर आपके अभी मेनी टू मेनी का होगा एंड सो ओके. एंड हम लोग क्या कर देते हैं, रिलेशनशिप टाइप देखिए यहाँ पर 1 to 1 है. अभी सपोज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ऑप्शन 2, 1 to 1 रहेगा क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड जो है. अभी हम लोग सिंपली 1 to 1 रिलेशनशिप देखेंगे and I am going to create. See here, you can see here relationship established here is 1 to 1. Okay. अभी हम लोग एक और रिलेशनशिप तैयार करेंगे, एडिट रिलेशनशिप्स, क्रिएट न्यू. ठीक है, लेफ्ट कॉलम टेबल एंड स्टूडेंट इन्फो. ओके, अभी नेम एंड नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट नेम. ओके, अभी यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या आता है. सो यहाँ पर देखिए एरर क्या आता है या फिर वार्निंग क्या आती है, और रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट. वी वांट टू एडिट द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप टू क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप एंड देन क्लिक नो. ठीक है, एक बार पहले से हमारी रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई है फ्रॉम गाइड आईडी टू रोल नंबर. ओके, सो आई विल क्लिक ऑन कैंसिल. यहाँ पर देखिए 1 to 1 रिलेशनशिप हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश की हुई है. सो इफ यू सी हियर, you can see the relationship between guide ID and roll number is already established. So what I will do, I will see direct relationships and now I will edit relationships here. Okay, I can create here new relationship. So here also we can see create new and we can have it. Now suppose अभी मैं क्या कर देती हूँ, ये जो रिलेशनशिप है वो क्लियर कर देती हूँ. यहाँ पर आपको वार्निंग क्या क्या दिखाया जाएगा, द लेआउट ऑफ द रिलेशनशिप्स विंडो विल बी क्लियर्ड. यस, ओके. अभी रिलेशनशिप जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिलीट कर दी है. सो अभी हम लोग न्यू रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे 2 टेबल्स में एंड ऐड इट. ऐड, ओ सॉरी, हमसे डबल हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं. शो डायरेक्ट रिलेशनशिप्स यहाँ पर नहीं है कोई. ओके, फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड टेबल्स रिलेशनशिप कर देते हैं यहाँ पर एस्टेब्लिश. ऐड एंड टेबल स्टूडेंट. देखिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी थी तो उसने बाय डिफॉल्ट उसको ऐड कर दिया है. ठीक है, सो लाइकवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं. अभी जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट में देखा था कि व्हाट इज मीन बाय द रिपोर्ट, सो वैसे ही रिपोर्ट्स हम लोग यहाँ पर भी जनरेट कर सकते हैं. डायरेक्टली मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिलेशनशिप रिपोर्ट पर क्लिक कर दिया. नाउ आई विल क्लोज इट. दीज आर नथिंग बट द रिपोर्ट्स है, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं. सो फॉर नाउ आई विल क्लोज दिस. ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, रिलेशनशिप जो है वो उसका रिपोर्ट थोड़े से देख लेते हैं. Here are this is our relationship and you can see we can see different types of relationships here. So what we can do here is by using these relationships we can have so many types of relationship, that is 1 to 1, 1 to many and so. ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया था, we can see the relationships here and we can have the different operations which we can perform on the relationships. ठीक है, अभी ये हो गया the different types of relationships, that is 1 to 1 relationship in tables, 1 to many relationships in table and many-to-many relationships in table. अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल में देखा 1 to 1 रिलेशनशिप. अभी सपोज हम लोग एक से ज्यादा टेबल्स जो है वो यूज कर रहे हैं तो एट दैट टाइम वी कैन यूज द 1 to many relationships और वी कैन हैव many-to-many relationships also. So in complicated database here we can use these different databases here. Okay, so now for now I will close. Then I will open relationships here. Now here one thing what you can do is you can have the edit relationship also.
देन यस, अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। देखते हैं वो चेंज होता है या नहीं। और जॉइंट टाइप हमारा क्या होगा, सपोज ओके, एंड व्हाट आई विल डू, ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो गई। दैट इज गाइड आईडी इज रिलेटेड टू विद द स्टूडेंट नेम। ये हमारी हो गई 1-to-1 रिलेशनशिप। नाउ सपोज इफ यू चेक, यहाँ पर जो है हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो कहाँ पर हमको दिखता है, यहाँ पर शो होता है। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी आई विल क्लोज दिस फॉर नाउ अगेन एंड आई विल गो टू द रिलेशनशिप्स। अभी एडिट रिलेशनशिप करते हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट नेम की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, कौन सा है उसका, ईमेल आईडी। ओके, अभी यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ऑल रिपोर्ट्स लिए थे उसकी, अभी फिर से हम लोग 1-to-1। ओके, यहाँ पर देखिए एरो चेंज हो गया है, 1-to-1। यहाँ पर अभी 1-to-many रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई थी। नाउ वी कैन सी अवर स्टूडेंट इन्फो, that is you can see that is this guide id is related to the student informations email id. Okay, so likewise we are going to have the relationship information. अगर आप लोगों ने एक ऑप्शन देखा होगा यहाँ पर in relationships, whenever we are going to edit or add some relationships there. Okay, अभी यहाँ पर देखिए, अभी edit relationship में enforce referential entity एक ऑप्शन आता है, ठीक है। Okay, the database engine could not lock table because it is already in use by another process or person. That is नहीं, सपोज हम लोग इसको चेंज कर देते हैं एंड इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये ऑप्शन जो है इसको एक्सेस कर देते हैं। और जॉइंट टाइप जो होगा हमारा ओनली 1-to-1। ओके, देखिए ये नहीं होता है। अभी पहले देखिए एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। नाउ सपोज आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर, पहले वो समझ के लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगी कि ये क्यों नहीं हो रहा है। सो द नेक्स्ट point which we are going to discuss in the regarding the relationships in the tables, that is referential integrity. देखिए, first of all, what is mean by the referential integrity? Now what we can say that referential integrity is a system of rules that a database management system uses to ensure that the relationships between records in related tables are valid and that users do not accidentally delete or change related data here. So we can say that in simple words, referential integrity is used to ensure that no related data gets accidentally deleted or changed. इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई टेबल्स में रिलेशनशिप हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें कुछ डेटा में चेंज करते हैं, तो वो चेंज एक्चुअली नहीं होना चाहिए। सो टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज गोइंग टू बी यूज्ड. So just we can say that the conditions for referential integrity which we can use is, first one is you can set referential integrity when all of the following conditions are going to be met. Here the conditions which we have enlisted here. The first one is the matching field from the primary is a primary key or has a unique index. ठीक है, the matching field from the primary table is a primary key or has a unique index. इसका मतलब क्या होता है, देखिए प्राइमरी टेबल की जो प्राइमरी की है वो यूनिक ही होनी चाहिए। एंड यस, ऑब्वियसली प्राइमरी की तो बाय डिफॉल्ट यूनिक ही होती है, बट उसकी इंडेक्सिंग जो है वो भी क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इंडेक्स होनी चाहिए, जैसे कि उसको असेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, लाइकवाइज। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द रिलेटेड फील्ड्स हैव सेम डेटा टाइप। जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था क्या, कंडीशंस फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रिलेटेड फील्ड्स हैव सेम डेटा टाइप, मतलब क्या, अगर गाइड आईडी नंबर है तो स्टूडेंट आईडी भी नंबर होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या ट्राई किया था, गाइड आईडी और नेम को मिलाकर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो अप्लाई की हुई थी, विच वाज नॉट सक्सेसफुल। दैट वाज द रीजन हियर द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा मस्ट बी द कंडीशन टू बी satisfied फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. Then next week, both tables belong to the same database. Yes, obviously both tables must belong to the same database which we have created now. Now if the tables are linked tables, then they must be
tables in the base format, and you must open the database in which they are going to be stored to set referential integrity. So referential integrity we can say can't be enforced for linked tables from database in other formats. ठीक है, हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को जो है वो फोर्स नहीं कर सकते हैं. नाउ अगर सपोज आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स भी करें, इफ यू आर गोइंग व्हेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी is going to be enforced there, you must observe these of the some of the following rules which we are going to see here. You can't enter a value in the foreign key field of the related table that doesn't exist in the primary key of the primary table. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? You can enter a null value in the foreign key also, specifying that the records are unrelated here. But for example, if you don't have an order that is assigned to a customer that doesn't exist, but you can have an order that is assigned to no one by entering a null value in the customer ID fields. So you can't enter a value in the foreign key field of the related table that doesn't exist, but primary key of the primary table. Then next one is the next differential integrity restriction is what, or a condition is what? You can't delete a record from a primary table if matching records exist in a related table. It means what? सपोज आपके प्राइमरी टेबल में एक जो डेटा है या फिर रिकॉर्ड है और वो रिलेटेड है अदर टेबल से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर गाइड है, गाइड आईडी जो है वो प्राइमरी टेबल का रिकॉर्ड है और वो गाइड आईडी हम लोगों ने क्या किया है, स्टूडेंट टेबल में यूज किया गया है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गाइड टेबल में जो गाइड आईडी है उसको डिलीट नहीं कर सकते. दैट इज द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. Then next one is you can't change a primary key value in the prime table if the record has related records. Yes, obviously अगर आपके पास प्राइमरी की वैल्यू है प्राइमरी टेबल में जो कि दूसरे रिकॉर्ड से रिलेटेड है तो वो हम लोग डिलीट नहीं कर सकते. So in this way we are going to refer the referential integrity with some conditions and rules here. So as we have seen in the example, we can create this referential integrity here. So अभी हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो पूरे रिलेशंस है वो डिलीट कर देते हैं और हम लोग एक नया टेबल ऐड कर देते हैं. फिर से ऐड एंड स्टूडेंट इन्फो ऐड. देखिए अभी यहाँ पर जो पहली क्यूरीज थी वो आ गई हैं. सो हम लोग क्या कर देते हैं, एडिट रिलेशनशिप्स कर देते हैं और यहाँ पर जो है इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग I will close, no, I don't want to close all, I will just close my relation. No. Okay, so I will again go to the my table relationships here. You can see the object dependencies. So object dependencies means what? The objects that are depend on me. Here it is going to say. यहाँ पर गाइड इंफॉर्मेशन जो है, गाइड इंफॉर्मेशन पर कौन डिपेंड है, यू कैन सी द student table. That's why we have created the queries here. So यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, लेआउट जो है वो क्लियर कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं. अभी रिलेशनशिप जो है मुझे क्या करना है वो ठीक है. अभी एक बार देखिए हम लोगों ने रिलेशनशिप क्लियर कर लिया तो वो क्या करता है, वो डिलीट नहीं करता है उसको. सो इन दिस वे रिलेशनशिप्स, once you are going to use these different relationships, you are not able to have some rules there. ओके देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उसने क्या कर लिया, ईमेल आईडी पर कर लिया. अभी हम लोग एडिट रिलेशनशिप कर देखते हैं. ओके, गाइड आईडी इज रिलेटेड टू रोल नंबर. ओके, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जॉइन टाइप 1 to 1. ओके अभी यहाँ पर देखिए वार्निंग क्या देख रहा है, द डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉक टेबल स्टूडेंट फॉर बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज बाय अदर पर्सन और प्रोसेस. ओके फिलहाल के अभी हम लोग क्या कर देते हैं, ये पूरा जो है वो क्लोज कर देते हैं एंड वी विल क्लोज दिस आल्सो. Now what I will do,
ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है शो डायरेक्ट रिलेशनशिप हम लोगों ने देख लिया। ओपन, हम लोगों ने गाइड इंफॉर्मेशन जो है वो ओपन करके ले ली। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। इसके अभी रिलेशनशिप में हम लोग गए। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, एडिट रिलेशनशिप कर देते हैं एंड स्टूडेंट इन्फो का रोल नंबर जो है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो गया, 1-to-1 रिलेशनशिप जो है बाय हैविंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऐड हो गया। पहले 1-to-1 रिलेशन होता था, पर यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो ऐड हो चुकी है। और ठीक है, अभी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या रूल है, अगर कोई अदर फील्ड दूसरे फील्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी देखिए गाइड आईडी जो है वो रोल नंबर से कनेक्टेड है, मतलब क्या हम रोल नंबर और गाइड आईडी जो फील्ड से ये चेंज नहीं कर सकते आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, गाइड इन्फो में जाते हैं और यहाँ पर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर एडिट नहीं हो रहा है, नथिंग इज गोइंग टू बी डन हियर, पर मैं यहाँ पर चेंज करके देखती हूँ। देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, वैसे हम लोग अभी सेम अप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में। ओके, यहाँ पर चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए गाइड नेम PQR is assigned here if you see here, क्योंकि यहाँ पर मेन डिपेंडेंसी किसकी है, रोल नंबर की जो है वो गाइड आईडी पर है। दैट्स व्हाई इट इज इजी टू डू द चेंजेस इन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी प्राइमरी फील्ड यहाँ पर कौन सी है, गाइड आईडी है, राइट। सो वो जो है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड दैट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन गाइड आईडी। अभी अभी आप लोगों को समझ के रहना है कि डिपेंडेंसी कैसी है। तो यहाँ पर यू कैन सी हियर दैट इज गीता का गाइड कौन है, ABC है, बिकॉज इट इज हैविंग गाइड आईडी 1। जॉन का PQR। देखिए डिपेंडेंसीज कैसी है, GHI रिलेशंस कैसे एस्टेब्लिश यहाँ पर हो रहे हैं। Okay, now you can easily see here that is how the dependencies are going to be established between the two tables using the one-to-one relationship here. Okay, so as per the rule of referential integrity, you can enter what we can delete a record from a प्राइमरी टेबल इफ मैचिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन रिलेटेड टेबल। जैसे कि हम लोग गाइड आईडी डिलीट नहीं कर सकते थे, पर स्टूडेंट आईडी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे in today's lecture we have seen how to establish the relationship between different tables. Okay, I hope you got this point. That is what we have seen: table relations, one-to-one relationships in table, one-to-many relationships in table, many-to-many relationships in table, and actually referential integrity. Okay, by using the same ways you can have one-to-many relationships also, then many-to-many relationships also. Okay students, that's all for today's lecture. If you have any doubts, if you can write in the comment box. If you want more sessions related to the MS Access, please let me know about that also. So that's all for today's lecture. So we will meet in the next lecture with the new concept of the MS Access. That is what we are going to see, the databases. Next point, I think we are going to study about the queries, and then next we are going to study about the forms and reports. ठीक है, आज के रिलेशनशिप के बारे में एक चीज में बताना रह गया है कि अभी हम लोग रिलेशनशिप्स का जो है रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो देखिए। बाद में हम लोग रिपोर्ट्स डिटेल में देखने वाले हैं जब हम लोग एक्चुअली रिपोर्ट्स का स्पेशल सेशन लेंगे। बट यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट रिलेशनशिप में जा सकते हैं, देन कैंसिल एंड ठीक है, अभी एडिट नहीं करना है, हमको क्या करना है, रिलेशनशिप रिपोर्ट जो है वो रन करना है। देखिए यू कैन सी हियर रिलेशनशिप फॉर ट्रायल 1, देन रिलेशनशिप यहाँ पर कैसी है वो आप लोग देख सकते हो। इन दिस वे वी कैन हैव द रिपोर्ट्स फॉर द रिलेशनशिप्स। फिलहाल मैं इसको नहीं चेंज करूंगी, सेव करूंगी जब हम लोग रिपोर्ट्स देखेंगे तब के लेक्चर्स में हम लोग इन डिटेल में देखने वाले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय। So at the end of the session,
let me tell you about the Mega Launch Mondays. It is one of the Unacademy subscriptions. So we are going to have the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. And the batch will start from the 5th of July 2021. And its duration is up till the 30th of the November 2020. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर CBSE क्लास 10 that is target batch 2022. Yes, and it is going to cover the full NCERT syllabus with skill teachers. देखिए हमारी बैच जो है वो स्टार्ट होगी 5th of July 2021 से and it will end on 30th November 2021. So we are going to have subjects like SST, that is social sciences, आपका मैथ्स भी इसमें क्लियर हो जाएगा, साइंस, then English and Hindi also. So likewise, we are having the target batch 2022 for class 9th also. So here also we are going to cover full NCERT syllabus. जिसे क्लास 10th में है वैसे ही आपका क्लास 9th में भी फुल NCERT syllabus जो है वो कवर है. सो यहाँ पर भी आपके पास रहेंगे SST, देन मैथ्स, देन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी कोर्स. So you can subscribe for class 9th and get 10th, 11th and 12th subscription free. Likewise, you can subscribe for class 10th and you can get the subscription for the class 11th and 12th for free. So हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है these will be new batches every Monday. Every Monday आपकी new batches जो है वो start होंगी for class 9th also and for class 10th also. This will be called as the class target 2022 batch, जहाँ पर हमारा full NCERT syllabus जो है वो cover हो जाएगा. So these are nothing but our unacademy batches for class 9th and class 10th. So I repeat again, that is if you are going to subscribe, आप लोग suppose 9 का subscription लोगे तो आपको क्या रहेगा, उसके साथ क्लास 10th, 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. सो 9th के बच्चों के लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा. विथ 9 आप लोग क्या कर सकोगे, 10th, 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे. वैसे ही अगर आप लोग क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन लोगे उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा. आपको उसके साथ क्या करेगा, क्लास 11th एंड 12th का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में मिल जाएगा. जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड गेट द सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर क्लास 10th and 11th and 12th. For 9th and for 10th you can have the subscription of the 11th and 12th absolutely for free. So अभी मैं आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक जो है उसके बारे में बताऊंगी. ओके, तो प्लस इज व्हाट योर बेसिक प्लान टू गेट स्टार्ट एंड प्लस का जो एडवांस्ड है वो क्या है, आइकॉनिक. यस, यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर. यस, करेक्ट. वी आर हैविंग द पर्सनल मेंटर्स फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. देखिए पहले हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं. प्लस में आपको मिलेंगे इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. उसके बाद आपके लिए हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस लेंगी वीकली, मंथली. देन you are going to have the structure course and PDFs. The PDFs and course, that is notes, will be shared by the particular educator also. That will be the more benefit for you. Then next one is the iconic subscription. So जैसे कि मैंने अभी बताया आइकॉनिक जो क्या क्या रहेगा, प्लस का एडवांस रहेगा. ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे. यहाँ पर भी आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द यूट्यूब आल्सो. यस, प्लस में भी आपको यूट्यूब के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आइकॉनिक मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे यूजिंग मेंटी क्विजेस, और वी आर हैविंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो. एंड यस, ऑब्वियसली आइकॉनिक में भी आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स एंड पर्टिकुलर PDFs आल्सो, दैट इज टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर. ठीक है, बस आइकॉनिक्स में और एडिशनल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर रहेगा. यस, दैट इज इंडिविजुअल मेंटर विल बी देयर टू अटेंड योर ऑल डाउट्स एंड टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स. दैट इज लाइव डाउट सॉल्यूशन भी आपके लिए रहेगा. यस, एंड यस ऑब्वियसली पेरेंट का जो है आपके डायरेक्टली कांटेक्ट रहेगा, दैट इज पेरेंट कनेक्शन विल बी देयर. And then next will be you will have your own personal study planner. That will be the benefit of the iconic selection.
एंड अगर आप लोग रेफरल कोड यूज करते हो तो यू बाय यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज TDI यू आर गोइंग टू हैव द 10% ऑफ। सो देखिए अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ टू यूज द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए अभी समझो आप लोगों ने 9 का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके साथ 9, 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है फॉर दी प्लस। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया तो उसके साथ आपको मिल जाता है होल बंच। देखिए अभी आप लोग अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको पड़ेगा 7,500 7,500 में। अगर 6 मंथ का करोगे तो 10,000, 12 मंथ्स फॉर 15,000, देन 15 मंथ्स फॉर 18,000 और अगर 24 मंथ्स का लोगे तो वो रहेगा आपका 25,000 का। So these will be all the subscriptions for the plus. Okay. So likewise plus we are having iconic, that is it is advanced version of the plus subscription. देखिए अभी iconic में आपको क्या रहेगा, if you are going to for the 3 months subscription आपको पे करने पड़ेंगे 12,000। अब if you are going for 6 months subscription आपके लिए रहेंगे 17,000। Likewise, if you go for 12 months, you will have the 28,000। देखिए आप लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे यानी कि जितना ज्यादा मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लगे उतना ही क्या रहेगा आपको डिस्काउंट भी अच्छे से मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको रहेंगे 48,000। सो लाइकवाइज यू आर गोइंग टू हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर द 9, 10th, 11th, 12th प्लस एंड 9, 10th, 11th, 12th आइकॉन। सो उसके बाद अगर आप लोग क्लास 10 के लिए जाओगे तो क्लास 10 के लिए 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सो अगर हम लोग प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू पे 7,500, देन उसके बाद फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 10K दैट इज 10,000, फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे फॉर द 15,000। सो वैसे ही आप लोगों को क्या क्या रहेगा, 15 मंथ्स का 18,000 के लिए, 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000, 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए एंड 36 मंथ का 32,000 के लिए। सो अगर आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप लोग 11 का और 10 का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ ले सकते हैं। सो वैसे ही अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए जाओगे, इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक, देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 12,000 के लिए, देन 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 17,000 के लिए, देन नेक्स्ट वन इज 12 मंथ्स फॉर 28,000, then 15 months for 32,000, then 18 months for 35,000, then 24 months for 48,000 and lastly 36 months for 66,000. So I would suggest if you are going for the 9th then you can have the benefit of both 9, 10th, 11th and 12th. अगर आप लोग 10th में जाओगे, 10 का सब्सक्रिप्शन आप लोग जोगे जो 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिल जाएगा। So and you can use my referral code also with the flat 10% off discount. So now Unacademy is going to have the scholarship worth of rupees 1 crore plus in month of the July. Yes, we are going to have the Unacademy contract. यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, we are going to have weekly scholarship tests for CBSE class 9th and 10th students. So specifically for 9th and 10th के जो बच्चे हैं वो लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सो ये जो एग्जाम रहेगी दैट इज दिस कम्बैक्ट विल बी अवेलेबल और इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इन बोथ लैंग्वेज इट विल बी अवेलेबल on the date of the 4th July at 11 AM. So you can enroll now in the link which is given in the description box. So अभी अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग क्या 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 जीत सकते हो। ओके, इट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस। फर्स्टली आपका स्टडी अच्छे से हो जाएगा। इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट देन इट विल बी हैव मोर एनकरेजमेंट फॉर यू टू स्टडी मोर एंड इट विल बी फन लर्निंग। सो यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज 1 crore। यस, बिल्कुल सही। एंड द एग्जाम टाइम विल बी 45 मिनट्स। आपके जो एग्जाम टाइम रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स का। इट विल बी हैविंग द 30 क्वेश्चंस। देखिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मिनट्स के लिए। ओके, एंड यू कैन हैव दिस लाइव टेस्ट फ्री। ओके, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है। यू कैन हैव दिस फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर simple Android phone. If you are having a laptop, you can use the laptop also. And yes, obviously tests are going to have in Hindi and English as per your convenience. So just remember this test will be there for only for CBSE class 9th
and we just try to note down the date. That is what? 4th July at 11. Okay, I hope you understood what is this Unacademy Combat Scholarship Test. So you can have the 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription if you are going to use my referral code, that is TD Live. Okay, so and yes, obviously you can download the Unacademy app, that is totally for free, and you can use its all features for free, and you please use my referral code, that is TD Love, if you are going to download the particular Unacademy education app. So students, that's all for today. We will meet in the next lecture. Unacademy, let's crack it. Till then,